Hello, my dear student. In this question, it is mentioned, consider a schedule of transaction T1 and T2. Here, Rx stand for read X and Wx stand for write X. Which one of the following schedule is conflict equivalent to the above? And these are the options. Option A, B, C, D. First of all, it is not asking कि it is conflict serializable or not. It is asking conflict equivalent because when you see, में आपको साइकिल बनता हुआ दिख रहा है. R1A, you can see here, this one is a cycle and this one T1 से T2 and T2 से T1. इधर आपको साइकिल बनता हुआ दिख रहा है. तो आपसे ये भी नहीं पूछा है कि कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है या नहीं है. इट इज आस्किंग इन दिस क्वेश्चन कि इट इज कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट और नॉट. और व्हेन द शेड्यूल इज कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट, कब होता है कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट? जब सभी कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन का पेयर का ऑर्डर सेम हो. व्हाट इज माय मीनिंग कि यहां जैसे आप कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन का ऑर्डर लिखेंगे, कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन का ऑर्डर इन चारों में से किसी में मैच होना चाहिए माइट. So because it is MCQ, that's why not more than one correct here. Now, first of all, we will write the conflict operation. Then we will check each and every option. Here conflict operations are, what is the conflict operation here? A, there is a conflict operation? No. B, yes. For a B, yes, we have a R2B, W1B, second W2B, a W1B, work has been done. Next C, R1C, W2, R1C से W2. नेक्स्ट R2D से W1D. या तो आप ऐसे कह सकते हैं और आप इसको कैसे लिख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट? रीड से राइट, रीड बी से राइट, दैट इज व्हाट, T से T1, T2 से T1. एंड राइट से राइट, राइट बी से राइट जो ऑपरेशन फॉलो हो रहा है, दैट इज ऑल्सो T2 टू T1. इधर आप सब्सक्रिप्ट से ट्रांजेक्शन नंबर डिनोट कर सकते हैं. एंड रीड से जो राइट हो रहा है, रीड से जो राइट हो रहा है, दैट इज व्हाट, T1 से T2. एंड रीड डी से जो राइट डी हो रहा है, दैट इज व्हाट, T2 से T1. ये आप इधर देख सकते हैं. ओके, तो दीज आर द फोर कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, कैन सी T1 से T2. और फॉर ए डी, T2 से. okay, now we have to check in all four options. We will check, although we will not stop, कि अगर जब तक अपन को आंसर मिल गया जब ही नहीं रुकेंगे अपन, एक एक ऑप्शन को चेक करें. ओके, सो हियर इन द ऑप्शन ए, what is happening my dear student, what is happening? You can see for a B, for a B what is happening, R2 से W1B, W2B से W1B, and for a C, R1C से W2C, and for a D, R2D से W1D. Either you can say in this manner or you can say read say write B from T2 to T1 and write B say write B, that is T2 से T1, and read C से write C, that is T1 से T2. Next, read D से write D, that is T2 से T1 my D. Okay, now here you can see for a B, read से write T2 से T1, B write से write T2 से T1. Yes, it is matching. Read से write से write T2 से T1. And what about C? What about C? Read C से write C T1 से T2. Read C से write C T1 से T2. What about D my dear? Read D से write D T2 से T1. Read D से write D T2 से. So A is matching. But we will not stop. We will check each and every option. Okay? अपन सारे ऑप्शन चेक करेंगे और A अपना करेक्ट आंसर आ रहा है. बिकॉज आप इधर देख सकते हो R2B से W1B,
R2B से W1B एंड W2B से W1B, W2B से W1B, R1C से W2C and R2D से W1D. You are getting each and every option. Okay. Now check for B. Now check for this option. For A, no. But for a B, what is happening? W1B2, R2B, W1B2, W2B, and for a C, R1C, W2C, and for a D, W1D2, R2D. Clear बच्चों? So what is the problem in this question? In this option, you can see B पे जो हो रहा है वो T2 से T1 हो रहा है. B पे जो हो रहा है T2 से T1 हो रहा है, यहाँ राइट B से रीड B हो रहा है पहली बात, और वो भी T1 से T2 हो रहा है, और इधर भी राइट B से राइट B T1 से T2 हो रहा है. जब यही ऑपरेशन फेल हो गए तो मेरे को आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सी पे ओके है, सी पे ओके है कि रीड सी से राइट सी है T1 से T2, दैट इज ओके. बट दिस वन नॉट करेक्ट. एंड फॉर ए डी T2 से T1 है, और यहाँ D पे पहली बात तो ऑपरेशन का ऑर्डर अलग है और सीक्वेंस भी T1 से T2 है. दैट इज ऑल्सो रॉन्ग माई डियर. So that's why B is not the correct answer. Clear? Now check for C. Here you can see for a C, what happened for a B? R2B से W1B, W2B से W1B, and what about C? R1C से W2C, and what about D? W1D से R2D. या यू कैन राइट इन अदर मैनर. बेटा मैं पूरा डिटेल में सिखाऊंगा इधर आपको. रीड बी से राइट बी, दैट इज व्हाट T2 से T1, एंड राइट बी से राइट बी, दैट इज व्हाट T2 से T1, एंड रीड सी से राइट सी, दैट इज व्हाट T1 से T2, एंड राइट डी से रीड डी, दैट इज व्हाट T1 से T2 माय डियर. अब आप इधर देख सकते हो कौन सा पेयर में मिस्टेक हो रहा है. रीड ओके है T2 से T1, रीड ओके है, रीड एंड राइट ओके, नो प्रॉब्लम. सी इज ऑल्सो T1 से T2, बट डी इज व्हाट R2D से W1D, डी इज व्हाट R2D से W1D, बट हियर इज द प्रॉब्लम. क्लियर? बिकॉज हियर यू आर गेटिंग T1 से T2, यहां आपको T1 से T2 मिल रहा है, जबकि होना क्या चाहिए T2 से T1. That's why C is also wrong option. Now check for D. Check for D बेटा. D में आप देखेंगे इधर W2B से W1B, R2B से W1B, एंड C W2C से R1C, एंड D R2D से W1D. या तो आप ऐसे लिख दीजिए, या फिर रीड बी से राइट बी, दैट इज व्हाट T2 फॉलोड बाय T1, एंड राइट बी से राइट बी, दैट इज ऑल्सो T2 फॉलोड बाय T1. होप सो आपको समझ में आ रहा होगा. एंड राइट सी से रीड सी, दैट इज T2 से T1, एंड रीड डी से राइट डी, दैट इज T2 से T1. में कौन से ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है? बी पे T2 से T1 हो रहा है, सी पे T1 से T2 चाहिए, सी पे T1 से T2 चाहिए, बट हियर माय डियर स्टूडेंट, हियर सी पे T2 से T1 आ रहा है, T2 से T1 आ रहा है, और डी पे आपका जो आ रहा है T2 से T1 आ रहा है रीड से राइट, बट यहां आपका डेटा आइटम पे है वो मैच नहीं कर रहा है, बिकॉज ये T2 से T1 आ रहा है, बट आपके जो ओरिजिनल क्वेश्चन में वो T1 से T2 है, वो T1 से T2 है.
तो बच्चों फॉर दिस क्वेश्चन ए इज द करेक्ट आंसर, ओनली ए इज मैचिंग। इफ इट इज एमएसक्यू तभी भी आप चेक कर सकते हो, अपन ने एक एक ऑप्शन को पूरा डिटेल में चेक किया है कि कौन सा ऑप्शन किस कारण से गलत है। सो हियर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। होप सो यू गेट इट। थैंक यू एवरीवन।